अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 6 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत में कत्ल किया जाए वो शहीद है। और अब सुर्खियां। अनाकापल्ली में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती कामों का जगन ने रखा संगे बुनियाद। कहा, सियासत अवामी खिदमत का नाम है। बीआरएस को बेदखल करने के लिए बीजेपी की हिकमत अमली का ऐलान। डॉक्टर लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम मोदी की मां हीराबेन मोदी नहीं रही, मोदी ने अदा किए आखिरी रसूमात। हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कार हुई शोला पोश। और अब तफसील। अनाकापल्ली जिले के दौरे के दौरान वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 470 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले एल्लूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। नरसीपट्टनम के करीब जोगीनाथ पालेम के करीब 500 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों का भी इफ्तिताह किया। गिरिजन देहाती इलाके और नरसीपट्टनम को जोड़ने वाली सड़क की तामीरी कामों का भी आगाज किया। सियासत का मतलब शूटिंग, ड्रोन शॉट या ड्रामा नहीं होता। वजीर आला जगन ने ये बात कही। जगन ने कहा कि सियासत का मतलब किसान, SC ST BC अक़लियत व गरीबों की जिंदगियों में तब्दीली लाना है। गांव की तरक्की, सरकारी अस्पताल की सूरतगिरी, रुश्वत से पाक इंतजामिया है। बेघरों को घरों की फराहमी के जरिए लोगों के दिलों में घर करना ही असली सियासत है। जगन ने बाबू और पवन कल्याण पर तनकीद की। మొన్ననే ఒక ఘటన, ఫోటో షూట్ కోసం, డ్రోన్ షాట్ కోసం, జనం బాగా రాకపోయినా కూడా జనం బాగా వచ్చారని చూపించడం కోసం ఒక చిన్న సందులోకి గొంతులోకి ఇరుకు రోడ్డులో జనాన్ని అక్కడికి నెట్టారు. నెట్టి తన వాహనాన్ని అటుగా తీసుకెళ్లి 8 మందిని చంపేశాడు అని అంటే ఇంతకంటే ఘోరం ఎక్కడైనా ఉంటుందా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నా. ఇదేమి కర్మ మన రాష్ట్రానికి. గతంలోనూ కూడా ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గోదావరి పుష్కరాలు మీ అందరికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ రోజు కూడా అంతే, సినిమా షూటింగ్ కోసం, డ్రోన్లతో షాట్ కోసం ఒక దర్శకుడు కూడా పక్కనే తనతో పాటు. ఆ రోజు అంతే, గేట్లు ఎత్తడం, మిగతా గేట్లన్నీ మూసేయడం, మనుషులందరినీ కూడా ఆ గేట్లు ఎత్తిన దాంట్లో నుంచి అందరినీ కూడా పంపించడం. అక్షరాల 29 మందిని ఆ రోజు ఇదే షూటింగ్ కోసం అని చెప్పి ఆ రోజు కూడా ఇదే పెద్ద మనిషి చంపేశాడు. ఈ పెద్ద మనిషిని చూసినప్పుడు రాష్ట్రమంతా కూడా ఆ రోజు కూడా ఇదే అనుకుంది, ఇదేం కర్మరా బాబు మనకు ఈ రాష్ట్రానికి అని. ఈ పెద్ద మనిషి పేరు చెబితే ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి స్కీమ్ కూడా గుర్తుకు రాదు. మళ్ళీ 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను అని గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు. ఈ 73 సంవత్సరాల ముసలాయన్ను చూస్తే గుర్తుకొచ్చేటివి కేవలం 2 స్కీములు. ఒకటి వెన్నుపోటు, రెండోది మోసాలు. ఈ పెద్ద మనిషిని చూస్తే గుర్తుకొచ్చేటివి ఈ 2 స్కీములు గుర్తుకొస్తాయి. आम शहरियों तक इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत कारआमद साबित होती है।
CJPI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई जदीद फनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक तब्दीलियां लाना वक्त की अहम जरूरत है। AP जुडिशल एकेडमी का इफ्तिताह अंजाम देने वाले चंद्रचूड़ ने AP हाईकोर्ट के जुडिटाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तनाज़ात की यकसुई के साथ साथ इंसाफ रसानी को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। Our vision for all our judicial processes must be centered in increasing the accessibility of justice for citizens in pursuance of the transformative ideals of the Constitution. Our mission has to be to ensure that the whole colonial model of people seeking justice is replaced by a new justice delivery system where we reach out to our citizens, where the justice system is reaching out to people at the grassroots level. Technology is not an instrument by which the judicial institution will distance itself from citizens. Technology is merely an instrument to ensure that we reach out to citizens. And that is why I've said that this is a means by which we replace the colonial model of administering justice to a more modern vision where we are available to our citizens. AP में 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 अप्रैल से AP में 10वीं के इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। CBSE की तरह की एक दिन और इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। विजयनगरम मंडल के सारिका के करीब के डिप्टी स्पीकर के वीरभद्र स्वामी ने गरीब अवाम में मकानात के पट्टे तकसीम किए। अराजी तकसीम के दूसरे मरहले के तहत 3600 खानदानों में डिप्टी स्पीकर ने मकानात के पट्टे तकसीम किए। उन्होंने बताया कि किसी भी रिश्वत सितानी और बदउनवानी से पाक शफाफ तरीक़ेकार से अवाम में अराजी पट्टे तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गरीब अवाम के ज़ाती मकानात के ख्वाबों को पूरा किया है। सारिका मंडल में अवाम इस तोहफे पर जश्न मना रहे हैं। ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజలు అమాయకులు కారు, మోసపూరితమైన మాటలకి లొంగే పరిస్థితి పూర్వం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు లేదు. ఎవరైతే నీతిగా ఎవరైతే నిజాయితీగా పరిపాలన చేస్తారో వాళ్ళకి అన్నలు ఎక్కిస్తారే తప్ప తప్పుడు మాటలతో తప్పుడు ఆలోచనలతో పరిపాలన చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడికి పట్టిన గతే ఎవరికైనా పడుతుంది. ఎవరినైనా ఏదైనా అంటే ప్రజల మనసు మారుతుంది. ప్రజలు ప్రలోభ పెట్టి మళ్ళీ రాజకీయాలు చేసుకుందాం అన్న ఆలోచన ఉన్న అశోకేతరాజు లాంటి వాళ్ళకి నువ్వు ఈ విజయనగరంలో అనేక పదవులు అనుభవించావు, మంత్రి చేసావు, కేంద్ర మంత్రి చేసావు. విజయనగరానికి చేసింది ఏమైనా ఉందా చెప్పు అని అడుగుతున్నాం. ఏదైనా చేసావు అంటే నీ హయాంలో సర్వారా టెక్స్టైల్స్ మూల పడిపోయింది, అన్నా జూట్ మిల్లు మూత పడిపోయింది, ఈస్ట్ కోస్ట్ జూట్ మిల్లు మూత పడిపోయింది. कंदकूरू में पेश आई अमवात को बाबू की जानिब से किया गया कत्ल समझा जाएगा। साबिक वजीर विजयवाड़ा वेस्ट के MLA वेलमपल्ली श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम की अक्सरियत दिखाने की कोशिश में तंग जगह पर जलसे-आम मुनाकिद करके बाबू 9 अफराद की मौत का सबब बने हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क किया कि साबिक में पुष्करालू की शूटिंग के दरमियान भी बाबू कई लोगों की मौत का सबब बने थे। उन्होंने बाबू को सस्ती शोहरत के लिए तशहीरी हरबों से बाज आने का मशवरा दिया। वेलमपल्ली ने विजयवाड़ा में घर घर जाकर अवाम से मसाइल दरियाफ्त किए। కేవలం చిన్న చిన్న రోడ్లో పెట్టి జనాలను చూపెట్టాలని చెప్పి ఆ రోజు పుష్కరాలకు కూడా అంతే. ఆ రోజు బోయపాటి శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్లో పుష్కరాలకి ఆ రోజు సినిమా షూటింగ్ కోసం అని చెప్పని 30 మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నాడు. ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ ఏదో జనాలు ఒత్తిడి జరిగిపోయింది, బాగా జరగాలి, జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారని తెలిపించాలని చెప్పి చిన్న చిన్న సందుల్లో మీటింగ్లు పెట్టడం, ఆ జనాల్ని తీసుకొచ్చి కుక్కేయడం, దానివల్ల ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు నీ షూటింగ్ పిచ్చి మానుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ షూటింగ్ల పిచ్చిల వల్ల రాష్ట్రంలో ప్రజల ప్రాణాలకి ముప్పు కలిగే పరిస్థితి ఉంది. చంద్రబాబు మీద ఈ యొక్క ఏదైతే మృతి ఉందో ఇది చంద్రబాబు చేసిన హత్యలుగా భావించాలి అందరూ కూడా. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు షూటింగ్ల పిచ్చులతో అప్పుడు పుష్కరాలికి అంతే, ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతుంది.
जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों को अवाम में उजागर करने का रेवेन्यू के वजीर धर्मना प्रसाद ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है। उन्होंने श्रीकाकुलम के अंबेडकर भवन में श्रीकाकुलम हल्के के पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपोजिशन जमातें स्कीमात पर रोक लगाने का प्रोपेगेंडा कर रही हैं और कारकुनों को चाहिए कि अवाम को वाज़ेह तौर पर बताएं कि कोई भी स्कीम रोकी नहीं जाएगी। खासकर तालीम और सेहत के मैदान को दी जा रही तरजीह का अवाम को एहसास कराने की तरगीब दी। మీరు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒక్క నియోజకవర్గంలో 1000 కోట్లు ఈ పేదవాళ్ళ కన్నీరు తుడవడానికి, ఆకలి తీరడానికి పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేశారు. ఒక్క దగ్గర ఈ నయపరిచి వాలంటీర్ ఇచ్చాము. ప్రతి నయపరిచి సర్పంచ్ చుట్టుకున్నాడు, ఈ 10 రూపాయలు ఈ ఎంపీకి తీసుకున్నాడు అని చెప్పగలరు. ఇది టీడీపీ నాయకులకు కర్మ కనిపిస్తుంది. కర్మ కాదు, మరి మీరు అడగకపోతే కర్మ నందరా మాయమలో ఫోరం 10 మంది వస్తారు, వచ్చేస్తారు. ఏంటి అలా బాగా ఇప్పుడు మధ్యవర్తులు తినే సిస్టమ్ అంతా పోయింది. పాలన అంతా వికేంద్రీకరణ అయిపోయింది. ఎవరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. అది చెబుతా చూసుకొని తిరుగుతున్నారు. పత్రికలోనే రాయిస్తారు దాంట్లో. यादाद्री की मंदिर का सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दौरा किया। कोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलायम से मुर्मू खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए यादगिरी पहुंची। गवर्नर सौंदरा राजन, वुज़रा इंद्राकरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी और पंडितों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। याद रहे कि सदर जमहूरिया बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार यादाद्री की मंदिर आई हैं। उनकी आमद पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी पोलिट ब्यूरो मेंबर डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए तेलंगाना में बीजेपी के इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली से मीडिया को वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद करेगी और माह अप्रैल में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी। ఒక ప్రభారి అంటే ఒక రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయి ప్రభారి మరి ఒక అసెంబ్లీకి బాధ్యతలు అప్పగించు, ఒక విస్తార కంటే ఒక ఫుల్ టైమర్ 24/7 ఆ అసెంబ్లీలోని కార్యకర్తలకు అందుబాటులో సంస్థాగతంగా పార్టీ నిర్మాణం కోసం మాత్రమే. అంటే ఇవాళ పోలింగ్ బూత్ స్థాయిలో పూర్తి స్థాయి కమిటీల నియామకంతో పాటు పేజ్ ప్రముఖ్ వరకు ప్రతి 60 ఓటర్లకు ఒకరిని బాధ్యులు చేసేటువంటి యంత్రాంగాన్ని తయారు చేయడానికి ఒక విస్తారకు, ఆ అసెంబ్లీకి సంబంధించిన ఒక సీనియర్ నాయకుడు కన్వీనర్గా నియమించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేయడానికి కన్వీనర్ నిర్వహించేటువంటి బాధ్యత. ఈ రకంగా తెలంగాణను ఇవాళ కేసీఆర్ కుటుంబం నుంచి కాపాడేదానికి, ఆ కుటుంబ పాలన నుంచి విముక్తి చేయడానికి కేసీఆర్ హటాओ తెలంగాణ బచాओ అనే నినాదంతో భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలు కూడా మరి ఖరారు చేయడం జరిగింది. ఏప్రిల్ మాసంలో ఈ ప్రభుత్వం మీద ఛార్జ్ షీటు ఏ రకంగా ఇవాళ ధరణి మొదలుకుంటే సర్పంచులు ఇవాళ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే దుస్థితి, కేంద్రం ఉదారంగా 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆధారంగా నిధులు ఇస్తూ ఉంటే పల్లెల అభివృద్ధి కోసం వాటిని ఏ రకంగా దారి మళ్లించి ఈరోజు జేబులు కొడుతున్న ప్రభుత్వం, ఈ నిర్వాకాలన్నీ కూడా మొత్తం ఒక పూర్తి స్థాయిలో ఒక చార్జ్ షీట్ తయారు చేసి सिद्दीपेट जिले के दुबाका में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब बीआरएस एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के दरमियान लफ्जी जंग शदीद हो गई। एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात से माहौल गर्मा गया है। कोत्ता प्रभाकर रेड्डी ने चैलेंज किया कि सिद्दीपेट से काउंसलर के लिए मुकाबला करके रघुनंदन जीत कर दिखाए। रघुनंदन राव ने पलटवार करते हुए कहा कि कोत्ता प्रभाकर रेड्डी एमपी की निशिस्त से इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें, देखते हैं कौन जीतेगा। दोनों कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस से मुकामी तौर पर तनाव पाया जाता है।
एमएलएस की दल बदली केस में रोज बरोज नया मोड़ आ रहा है। ताजा तौर पर इस केस में टी कांग्रेस ने भी फरीक बनने का फैसला किया है। कांग्रेस के साबिक एमपी मल्लू रवि ने कहा है कि 12 कांग्रेस एमएलएस की जानिब से पार्टी तब्दीली के खिलाफ वो सीबीआई से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस में शामिल होने वाले 12 एमएलएस ने किसी न किसी सूरत में फायदा उठाया है। अब कांग्रेस उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने में जुट गई है। बयासीवीं कुलहिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी 2023 को नुमाइश ग्राउंड पर रियासती वजीर दाखिला महमूद अली इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस नुमाइश में 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी व आसाम तक गुजरात सारे हिंदुस्तान से लगाए गए हैं। नुमाइश का दाखिला टिकट 40 रुपये होगा और पार्किंग की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। आप जो 82वां नुमाइश के उद्घाटन के लिए हम लोग जो बेचैनी से इंतज़ार है, आप देख सकते हैं हम लोग ये इसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हम ये नुमाइश को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सक्सेसफुल बनाने का हमारी कोशिश है। आप देख रहे हैं कि हमें बहुत ही हमारे स्टॉल होल्डर्स हो या विजिटर्स हो बहुत ही इसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको ये आगवा देते हैं कि आप आइए, ज़रूर नुमाइश में आइए, घूमिए, लुफ्त लीजिए। हम बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, जगह बैठने के लिए जगह है, ग्रीनरी है और गाने सुनने के लिए भी इंतज़ाम किए हैं। आके आप इसका मज़ा उठाइए। फ्री पार्किंग है। बाहर से तरफ हम लोग BSNL से हम लोग हाथ जोड़ा के हमने एक वाईफाई सिस्टम कायम किया है जो अपने को विजिटर्स के लिए बात करने में आसानी हो और अपने स्टॉल होल्डर्स को व्यापार करने के लिए भी आसान हो। हर रोज मसरूफ रहने वाले वज़रा ने क्रिकेट खेलकर कुछ वक्त गुजारा। वज़रा हरीश राव और निरंजन रेड्डी रात के औकात में फ्लड लाइट्स की रोशनी में कुछ देर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए वक्त गुजारा है। सिद्दीपेट जयशंकर स्टेडियम में वेटरन्स क्रिकेट मैच के लिए हरीश राव और निरंजन रेड्डी ने शिरकत की। वेटरन्स का मैच हरीश राव 11 और राधाकिशन 11 टीमों के दरमियान खेला गया। इस मैच में राधाकिशन की टीम ने फतेह हासिल की। इस मौके पर फातेह और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोदी की मां हीराबेन की मौत पर एपी के वज़ीर आला वाइएस जगन मोहन रेड्डी ने इजहार रंज किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और उनके अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी किया है। जगन ने हीराबेन मोदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के खिलाफ सीपीआई कारकुनों ने एहतजाज किया। सीपीआई लीडर राजा ने इल्जाम लगाया कि रवि गवर्नर ऑफिस में बैठकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने सियासी पार्टियों और मजहबी जमातों से मुताल्लिक़ गवर्नर को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी हो गए। ऋषभ की कार डिवाइडर से टकरा गई जिसके सबब ऋषभ पंत शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा इतना शदीद था कि कार अचानक शोलापोश हो गई। ऋषभ पंत रोरगी से दिल्ली जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह ने बताया कि पंत के बेहतर इलाज के लिए हिदायतें जारी किए गए हैं। उन्होंने इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए बंगाल के लिए पहली वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने शख्सी तौर पर हाजिर न होने पर बंगाल के अवाम से माफ़ी भी मांगी है। याद रहे कि मां की मौत के गम से 2-4 वज़ीर आज़म ने अपनी खिदमात को मामूल के मुताबिक जारी रखकर एक मुस्बत पैगाम दिया है।
7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित, जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मां की मौत पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने ताज़ियत पेश की। उन्होंने कहा कि मां का महज एक ही रिश्ता होता है, इसका कोई मुतबादिल नहीं होता। उन्होंने प्रार्थना की कि मोदी इस गम से सब्र अता करें। उन्होंने मोदी जी को थोड़ा सा आराम करने का मशवरा दिया है। मियां महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 44वां सालाना उर्स राजौरी में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद दरगाह शरीफ पर हाजिरी दे रहे हैं। मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की गई और उर्स के मौके पर उलमा इकराम ने औलिया की सीरत, उनकी जिंदगी और इस्लामी तर्ज जिंदगी के औसाफ से वाकिफ कराया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अनाकापल्ली में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती कामों का जगन ने रखा संग बुनियाद। कहा सियासत अवामी खिदमत का नाम है। बीआरएस को बेदखल करने के लिए बीजेपी की हिकमत अमली का ऐलान। डॉक्टर लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम मोदी की मां हीराबेन मोदी नहीं रही, मोदी ने अदा किए आखिरी रसूमात। हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कार हुई शोलापोश। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।